Hare Krishna devotees, very warm welcome to all of you. So we'll be discussing from Bhagavad Gita chapter 4 verses, any guesses? 5 and 6. Previously we discussed verses 3 and 4. So the topic is Krishna's answer. Krishna's answer. Can anyone say what is the question? Okay, if Krishna is answering, who must have asked the question? Arjuna asked question, you are so young, how can you say that you had told to Surya about all this? Yes. So in the beginning of the 4th chapter, we remember that Krishna says, Imam vivasvate yogam proktavan aham avyayam. That this science, previously I have spoken to Vivaswan. और फिर purport में हमने देखा श्रील प्रभुपाद डिस्क्राइब करते हैं that if we want to estimate the duration कि कितने समय पहले ये विवस्वान को उन्होंने बताया, that comes out to be how many years? Huh? 12 crores. 12 crore years ago he spoke this to Vivaswan. विवस्वान कौन है? सूर्यदेव. सूर्य देवता का नाम क्या है? विवस्वान है. जैसे चीफ मिनिस्टर का नाम सच एंड सच होता है, राइट? चीफ मिनिस्टर अपने आप में नाम नहीं है, चीफ मिनिस्टर तो पोस्ट है. उसी तरह तो विवस्वान को बताया. तो अब अर्जुन को एक नेचुरल कंफ्यूजन, एक क्वेश्चन आ गया कि आप तो मेरे एज के हैं, मेरे कॉन्टेम्प्रेरी हैं, मेरे साथ खड़े हुए हैं, मेरे साथ बात कर रहे हैं, एंड यू आर सेइंग 12 करोड़ years ago you spoke this to विवस्वान. हाउ कम दिस इज पॉसिबल? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे संभव है? मैं तो समझ नहीं पा रहा. तो अब ये जो प्रश्न अर्जुन ने किया था, भगवान उसका उत्तर देंगे. सो वी डेडिकेट दिस सेशन टू हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, द फाउंडर आचार्य ऑफ वर्ल्ड वाइड हरे कृष्णा मूवमेंट, also called Srila Prabhupada's ISKCON. Okay, please repeat after me. Shri Bhagavan Uvacha Bahuni me vyatitani Janmani tab charjuna Tanyaham ved sarvani Natvam vetha parantapa. Please repeat the translation. The blessed Lord said, many births, both you and I have passed. I can remember all of them, but you cannot, O subduer of the enemy. So this is how Krishna gives the answer. That it is not that right now when we are standing together, this is the first time we have come into existence. है ना? भले ही हम कहते हैं कि जन्म लिया है हमने, बट ऐसा नहीं है कि इस जन्म में ही हमारा अस्तित्व सीमित है, बल्कि many births we all have taken. Now this applies to us also. Krishna is telling Arjun, and this applies to all of us, that all of us have taken many births. But we don't remember. How many of us remember our previous birth? Rare ऐसे situations होते हैं, rare cases are there, but usually the general pattern is that we forget. In fact, Jati Smar, right? Who can remember his past life? But they are very few, very rare. In fact, it is said that is a very great misfortune if someone can remember his past life, unless and until he is a pure devotee. If he was a pure devotee, then yes, it is great blessing. So this is now Srila Prabhupada very elaborately explains this. If you find both of these verses have fairly long purports, Prabhupada explains many points. In the Brahma Samhita, we have information of many incarnations of the Lord. Can anyone recollect from Brahma Samhita? Where does it is said? Brahmaji says. It's mentioned in the purport also. If you have the book, you can see. Ramadi Murtishu Kala Niyamena Tishtan Nana Avataram Karod Bhuvaneshu Kintu. Nana Avatar. Many incarnations Krishna has. Ram Adi. Lord Ram, Varaha, Narsimha, Adi, etc. So many incarnations Lord have.
And then, further it is said, I worship the Supreme Personality of Godhead, who is originally Govinda, Krishna, who is original person, absolute, infallible, without beginning, although expanded into unlimited forms, still the same original, the oldest, and the person always appearing as fresh youth. Advaitam, Achyutam, Anadim, Anantarupam, Adyam, Purana Purusham, Navayovanam cha, Navayovanam, fresh youth, oldest, Purana Purusham, he is the person, original, so he is the Supreme Lord. So it is not that when Krishna appeared 5,000 years ago on this land of Bharat Bhumi, and when he was speaking Bhagavad Gita to Arjun, that was the first time that he appeared. Rather, he had many, many, millions and millions of incarnations previously also. In the Vedas also it is said that the Lord, although one without a second, nevertheless manifests himself in innumerable forms. He is like the Vaidurya stone which changes color yet still remains one. किसी ने देखा ऐसा स्टोन जिसका कलर चेंज होता हो लाइट पड़ने पे? शायद हमारे एक्सपीरियंस में ना हो या हो भी सकता है, बट देयर इज दिस स्टोन दैट्स कॉल्ड वैदुर्य दैट एग्जिस्ट्स. It changes color. जैसे there are some reptiles, right? They also can change color, है ना? They also change color like that. Devotees like Arjun are constant companions of the Lord, and whenever the Lord incarnates, the associate devotees also incarnate in order to serve the Lord in different capacities. This is also a very, very important thing to note, that when Krishna appears, Krishna doesn't appear alone. For example, कई बार हम लोग सुनते हैं ना न्यूज़ में कि यूएस के प्रेसिडेंट जो है भारत दौरे पर आए हैं, है ना? सो हाउ विल ही कम? विल टेक अ फ्लाइट विद सम सूटकेस, एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए सूटकेस से लगेज लेके निकल रहे होंगे, ऐसे करते हैं वो. एंड देन ही चेक्स इन टू अ होटल, स्टेज देयर अलोन, डज मीटिंग्स एंड गोज बैक. अकेले आ जाते हैं क्या प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, या फॉर दैट मैटर कोई भी अगर डेलीगेट ऐसे आते हैं? दे डोंट कम अलोन, राइट? दे कम विद देयर एंटूराज, पूरी की पूरी टीम, राइट? यहाँ तक कि कई बार तो उनके खुद के कुक, शेफ या यू नो असिस्टेंट्स, पर्सनल, everyone is there accompanying. Similarly, यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? भगवान आदि पुरुषम, परम पुरुषोत्तम. वो जब अपीयर होंगे, वो अपने धाम से, अपने आध्यात्मिक अबोर्ड से, स्पिरिचुअल अबोर्ड से जब इस मटीरियल वर्ल्ड में आएंगे, so will he come just alone? He doesn't come alone. He also comes with his entourage, with his paraphernalia, with his devotees. Those who appear beforehand or after him, and they facilitate his leela, they facilitate his service. So similarly, Arjun, and in fact all the Pandavas, they are considered as the constant companions of the Lord. In different incarnations, of course we might not have heard कि जब भगवान इस अवतार में आते हैं, नरसिम्हा अवतार में आते हैं, तो अर्जुन किस फॉर्म में थे वहाँ पे. We may not know the details, but it is mentioned in the scriptures that whenever Krishna appears in different forms, all these devotees who are constant companions, they are also present. In fact, when this Bhagavad Gita was spoken to Vivaswan 12 crore years ago, Arjun was also present, but Arjun could not remember, because now he has changed his form. That is the meaning that we are different from this body. When we change the body, we also forget the life and the actions of previous body, previous life. But Krishna, when he appears, he doesn't forget. That means he doesn't change his body like us. He doesn't have a material body. One can derive this understanding very easily from this. When he appears, his appearance, his personality is all spiritual. There is no distinction, there is no difference.
ओके, नेक्स्ट अवतार में ही हैज टू चेंज हिज बॉडी, अब उनकी आत्मा निकल के दूसरे शरीर में चली गई, फिर वो जन्म ले रहे हैं? नहीं, रादर उनका अपीयरेंस डिफरेंट इनकारनेशंस में, डिफरेंट टाइम्स में, प्लेसेस में, सर्कमस्टेंसेस में, इट इज एब्सोल्यूट, इट इज ऑल स्पिरिचुअल। इट इज समथिंग लाइक कि जैसे हम लोग अभी यहाँ पे बैठे हैं, आप कुछ डिवोटीज बहुत अच्छे से धोती कुर्ता पहन के आए हुए हैं, है ना, अभी वो कहीं और जाएं, बाहर कुछ ऑफिस में गए, दे मे बी वियरिंग सूट, है ना, पैंट शर्ट एवरीथिंग, बट द पर्सन रिमेन्स द सेम, राइट? ही हैज, एंड हियर ओके वी आर डिवोटीज ऑफ कृष्णा, है ना, देयर वी मे हैव अ डिफरेंट डेजिग्नेशंस इन द ऑफिस, राइट? वी विल बी वर्किंग इन दैट कैपेसिटी, इन दैट, अंडर दैट डेजिग्नेशन, playing a role, yes or no? Yes or no? Similarly, when Krishna appears for different purposes in different incarnations, he assumes those different forms and enact those pastimes, those leelas. That is why his actions are not called karma. हम बोलते हैं ना हमारे कर्म होते हैं, कर्म या विकर्म, वो सब, लेकिन भगवान के एक्शंस को, भगवान की, उनको कर्म नहीं बोलते, क्या बोलते हैं उसको? लीला। क्यों बोलते हैं लीला? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कर्मा एंड लीला? क्या हम भी लीला कर सकते हैं क्या? कर्म के जो फल हैं, उन एक्शंस के जो फ्रूट्स हैं, हमें तो मिलते हैं कर्मों के, लेकिन भगवान के जो एक्शंस हैं उनके कोई उनको फल नहीं भोगने पड़ेंगे, अच्छे या बुरे, और कर्म बंधन में नहीं फंसते भगवान। यस, और वेरी नाइस। कर्म क्या है? कॉज एंड इफेक्ट। या तो हम जो कर रहे हैं वो किसी का इफेक्ट है, किसी कारणवश वश हम लोग उस कर्म में लिप्त हो गए, या फिर जो कर्म कर रहे हैं फ्रेशली उसका कुछ इफेक्ट होगा, दैट बिकम्स अ कॉज ऑफ एन इफेक्ट, है ना। लेकिन भगवान जो कर रहे हैं वो अपनी स्वीट विल से उस एक्टिविटी को, उस एक्शन को लेते करते हैं, वो किसी भी सर्कमस्टेंसेस से, किसी भी प्रीवियस अपने कर्म फल और उस सब से बंधे हुए नहीं हैं। और क्या अंतर हो सकता है? अबव द 3 गुणास हम लोग क्या हैं? हैं? प्रकृति के गुणों में बंधे हुए हैं, है ना, है ना। लेकिन भगवान क्या हैं? गुणातीत, ऐसे बोलते हैं गुणातीत, वन हु हैज ट्रांसेंडेड द। तो हम लोग भी गुणातीत हो सकते हैं, यानी कि एक भक्त जब शुद्ध हो जाता है पूरी तरह से, when he attains that stage, he also becomes liberated, transcends the modes. The difference between the Lord and Arjun is that the Lord remembered the incidents, whereas Arjun could not remember. The Lord is described in the Brahma Samhita as infallible, Achyuta, which means that he never forgets himself, even though he is in material contact. So when Krishna appears, he may be few days old baby, but he can still kill Putana, right? So he doesn't have to work hard, do some tapasya, and become God, become so powerful, become as powerful as God. Nothing of the sort. He is always God, whether he is 2 days old baby or grown up person, he is God. All powerful, omnipotent, always. That is Krishna. By the divine grace of a devotee can at once, by the divine grace, a devotee can at once understand the infallible condition of the Lord, whereas a non-devotee or a demon cannot understand this transcendental nature. That is why people misunderstand Krishna's pastimes, Krishna's leelas. Why? What makes it different? What is that difference that is created? Somebody is able to appreciate, he understands, he is respecting, he understands who is the Supreme Lord, hearing the same leela, same pastime. And somebody, when he hears, oh, Krishna ने माखन चुराया, अरे ये कैसा भगवान है, चोरी कर ली, जेल में ये तो पैदा हुआ था, ये कैसा भगवान है भाई? जेल में कौन पैदा होता है? भगवान है तो बिल्कुल किसी रॉयल, लग्जूरियस पैलेस के अंदर ही शुड हैव अपीयर्ड, जेल में, इतने उसमें कारागार में, और इस तरह से जो है, व्हाट इज दिस भगवान? देन ही इज स्टीलिंग अराउंड, टीजिंग यंग गर्ल्स,
प्लेइंग विद देम, देन रन छोड़ के भाग गए, चीटिंग से मार दिया। महाभारत में समझ रहे हैं, इस तरह की बातें सुन करते रहते हैं लोग, एंड देन दे मिसअंडरस्टैंड, इवन दे एंड अप क्रिटिसाइजिंग कृष्णा. So what is making this difference? Any guesses? People think he's just Superman and nothing. He's not really a God. People think that he is Superman. He is not God. Tamogrist. They don't understand transcendental nature of the Lord. Not hearing from the right source. Yes. Anybody would like to contribute? क्या अंतर क्या हो सकता है जी? व्यक्ति जब स्वार्थी होता है और उसका स्वार्थ जब आहत होता है तो सामने वाले व्यक्ति में उसको बुराई ही दिखती है, वो समझ नहीं पाता अच्छाई को. बिल्कुल. तमोगुण. यस यस. दुर्योधन जो भगवान को मटेरियल बॉडी समझते हैं. यस यस. वेरी नाइस. सो हु क्वालिफाइज टू अंडरस्टैंड दिस रियल नेचर ऑफ कृष्णा? What does Krishna say in Bhagavad Gita? What is that? What is the criteria? क्राइटेरिया क्या है कि कोई अगर ये क्राइटेरिया को मीट करेगा तो जो ये भगवान के इंस्ट्रक्शंस है इनको वो सही तरह से समझ पाएगा, भगवान की रियल पोजीशन को समझने का प्रयास कर पाएगा, आगे बढ़ पाएगा. और एल्स ही विल बी टोटली स्वेड अवे इनटू सम मिसअंडरस्टैंडिंग. ही इज very nice, very nice. One who surrenders to God, first of all. Yes, we can understand. Anybody else? Non-envious. Yes, only a pure devotee can understand. Yes, very good answers. Anybody else? What does Krishna say in Bhagavad Gita? We covered that verse, I believe. Huh? Krishna says, Krishna gives, this is the qualifying criteria to understand him. What does he say? हाँ नहीं, बट एटलीस्ट बिगिन, एटलीस्ट राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ना. नहीं तो क्या है, टोटल आदमी गलत जा रहा है. जाना दिल्ली था, पुणे की तरफ निकल पड़े और चल रहे हैं रफ्तार से. तो एटलीस्ट सही दिशा में बढ़ने की जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, जैसे एक कॉलेज में दाखिला लेना है तो क्वालिफाई करना पड़ेगा. अब वहाँ दाखिला लेके कितना आगे बढ़ गया कोई, वो बात की बात है. फाइनली अच्छी डिग्री लेके पास हुआ, अच्छा उसने, है ना, वो बात नहीं. एटलीस्ट दाखिला हो गया, है ना, राइट क्वालिफाई आप कर गए राइट डायरेक्शन में, राइट अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए. सो दैट क्वालिफिकेशन इज वन हैज टू बी अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, नॉन एनवियस ऑफ हिम. कृष्णा सेज इन, आई एम रिवीलिंग दिस कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, दिस सीक्रेट रहस्यम, because I am revealing it to you, Arjun, because you are my dear friend and a devotee, and you are non-envious of me, anusuyave, non-envious of me. You are not talking ill unnecessarily. You are not applying your mind in a negative fashion. ये कैसा भगवान है, ये ऐसा नहीं. तब जब तुम सबमिसिव तरीके से आते हो, मुझसे इंक्वायर कर रहे हो, now I am revealing this knowledge about myself to you. So this is very important. Then we, और by the way, अब ये कैसे आएगा? तो जैसे किसी ने बोला, hearing from the right source. We have to hear this knowledge from the, otherwise there is all good possibility that we may be misled or we will not attain the right understanding. कुछ ना कुछ confusions हमेशा बने रहेंगे. Even if somebody, I mean, so there are different degrees, right? There are different levels of misunderstandings that can, fall upon us. One is कृष्णा को हम कुछ और ही समझ लें, है ना. एक इवन स्पिरिचुअल पार्लेंस में, स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में ये बात करें यदि, तो कभी कभी कुछ सो कॉल्ड स्कॉलर्स, भगवद गीता के स्कॉलर जो हैं कुछ, और कुछ जो हैं इम्पर्सनलिस्ट फिलॉसफी के प्रमोटर्स, तो वो क्या कई बार कंक्लूजन निकाल देते हैं कि कृष्ण जो है ना, ये भगवद गीता जो कह रहे हैं, असल में ये जब कह रहे हैं कि इनको, उनकी शरण में आओ, उनके भक्त बनो, उनको सरेंडर करो, ये अपने लिए नहीं कह रहे, उनको नहीं करना. असल में उनके अंदर जो ब्रह्मन उपस्थित है, पर ब्रह्मन, निर्विकार पर ब्रह्मन जो है, उसको सरेंडर करना है. ये तो एक शरीर ही तो है, ये भी तो छूट जाएगा. तो उनका ऐसा विचार रहता है. बट वो ये भूल जाते हैं कि अगर वो वैसा ही एक नॉर्मल शरीर होता, हमारी और आपकी तरह,
तो वो भी तो भूल जाते ना, उनको कैसे याद रहता है कि नहीं? कृष्णा कह रहे हैं बहुनी, बहुत सारे जन्म बदल जाते हैं. यू फॉरगेट इट, यू डोंट रिमेंबर, यू कैन नॉट रिमेंबर, बट आई डोंट फॉरगेट. बिकॉज आई एम नॉट चेंजिंग माई बॉडी इज लाइक यू चेंज, बिकॉज माई बॉडी इज नॉट लाइक योर्स. Your body, material body perishes, your smriti, apohanam, it happens to you. I'm not subjected to all this forgetfulness, all this change of body. We may also note herein that a living entity forgets everything due to his change of body, but the Lord remembers because he does not change his Satchidananda body. His body is not material. His body is Sat Chit Ananda, spiritual. He is Advait, which means there is no distinction between his body and himself. Dvait matlab duality, dual. Advait matlab non-dual. There is no difference. So to say कि कृष्णा के अंदर जो है उसको सरेंडर करना है, कृष्णा को नहीं, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी फैलेसी है ना? राइट. यस. तो अंदर और बाहर, अब समझने वाली बात ये आपने कहा सही है, लेकिन इससे नेक्स्ट लेवल पे डिवोटीज समझते हैं कि देयर इज नो अंदर एंड बाहर ऑफ कृष्णा. दिस इज द राइट अंडरस्टैंडिंग, है ना? मे बी इट, बिकॉज हमारे अंडरस्टैंडिंग में क्या है कि हाँ भाई शरीर का तो नाश हो जाता है डेथ होने पे, और आत्मा तो अजर है, अमर है, वो रहती है, ऐसा हम समझते हैं. तो ये सेम अंडरस्टैंडिंग हम लगा देते हैं भगवान के ऊपर भी, है ना? लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं है ऐसे. अब हमारे लिए कई बार परसीव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. इमेजिन कीजिए ना, कोई व्यक्ति के हमारे एक्सपीरियंस में कोई ऐसा होगा जो अपने इतने सारे लाइफ्स का रिमेम्बरेंस रखता होगा, उसको सब पता है मैं पिछले लाइफ में ये था, उससे पहले ये था, उससे पहले वो था. किसी किसी को जो हमने केसेस भी आजकल देखे हैं जो रिकॉर्डेड हैं, वो भी प्रीवियस लाइफ का पता है उसको, है ना? एक लाइफ का, चलो किसी को 2-3 का पता होगा, बट जो इन्यूमरेबल लाइफ्स हैं सिंस टाइम इमेमोरियल, सब किसी को सब कुछ पता है. और एक और इंटरेस्टिंग चीज आगे हम पढ़ेंगे भगवत गीता में, वो बोलते हैं, कृष्णा बोलते हैं कि तुम ना सिर्फ अपने बारे में चीजें जानते हो, ना तुम भूतकाल को जानते, ना भविष्य को जानते. तुम जो अभी हो रहा है उसको थोड़ा बहुत लिमिटेड जानते हो, और सिर्फ अपने ही बारे में जानते हो. लेकिन मैं भूत, वर्तमान, भविष्य जानता हूं, और सिर्फ मेरा नहीं जानता, सबका, सारे लिविंग एंटिटीज का जानता हूं. हाँ, दिस इज द सुप्रीम लॉर्ड, दिस इज हिज पावर, दिस इज हिज कैपेसिटी. ओके, नेक्स्ट वर्स प्लीज रिपीट आफ्टर मी. वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट. अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया. Although I am unborn and my transcendental body never deteriorates, and although I am the Lord of all sentient beings, I still appear in every millennium in my original transcendental form. है ना कितना बड़ा रेवलेशन? Yes or no? Clearly Krishna is saying, I am unborn. Unborn मतलब जिसका कभी जन्म नहीं होता. तो फिर हम क्यों जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं? नाम में ही जन्म लगा दिया जन्माष्टमी. ऐसा क्यों? भगवान का जन्म ही नहीं होता. फिर ये लीलाएं कैसे सुन रहे हैं हम लोग? भगवान का जन्म नहीं हुआ तो ये सब कैसे आ गया? भगवान आए, यशोदा मैया के घर में रहते थे, माखन चुराते थे, गैया चराते थे. Yes. So Krishna, as here also he says, I appear, sambhavami. I appear, atmamayaya, in my original transcendental form. Just like you, when you have to appear in this world, material world, you have to accept a body which is matter, material. That's not the case with me.
I appear by my sweet will in my own transcendental form. That is why, how many of you watched this film, Narsimha, Mahavatar Narsimha? हरी बोल. तो जिन लोगों ने नहीं देख पाए हैं, अगर समय रहे, कन्वीनियंस हो तो प्लीज़ ज़रूर देखिए. तो उसमें ना जब वराहदेव का इनकारनेशन होता है, याद है? सबसे पहले उसमें वराहदेव का दिखाया है, और फिर बाद में फिर हिरण्यकश्यप की स्टोरी स्टार्ट होती है, और फिर ये नरसिंह भगवान अपीयर होते हैं. तो वराहदेव जब होते हैं तो ब्रह्मा जी ना उनको प्रेयर्स ऑफर करते हैं, ब्रह्मा जी और बाकी देवता. ये बकायदा भागवतम में ना इसका पूरा अच्छा डिस्क्रिप्शन है. तो वो बोलते हैं ये चीज़, देवगण ब्रह्मा जी, हेडेड बाय ब्रह्मा जी, दे एक्सप्रेस दैट यूजुअली अगर अपन देखें तो जो बोर है ना, शूकर, वो क्या बहुत सुंदर दिखता है? यूजुअली नहीं ना, उसको तो मतलब तो ऐसे. अच्छा, बाय द वे, ये जो बोर इनकारनेशन है ना, ये जो शहर में देखते हैं ना हम लोग, जो सुअर जो होते हैं, जो जिन्हें पिग बोला जाता है, जो गंदे रहते हैं एकदम, ये वो नहीं है. बोर मतलब जो जंगली होता है ना, वो थोड़ा डिफरेंट होता है, उसके टस्क्स होते हैं, एंड दैट इज़ डिफरेंट. एंड वो सब नहीं खाता जो यहाँ के लोग खाते हैं, ये वाले मतलब. लेकिन फिर भी उसकी भी जो फीचर्स हैं कोई ऐसे बहुत सुंदर थोड़ी होते है ना, इजंट इट? लेकिन वो प्रेयर जब ऑफर कर रहे हैं ना, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं इस चीज़ को, एक्नॉलेज कर रहे हैं दैट माय डियर लॉर्ड, ऑल्दो यू हैव अज्यूम्ड दिस फॉर्म, बट इट इज नॉट दैट योर फॉर्म और योर ब्यूटी हैज डिमिनिश्ड, रादर इट इज ऑल स्पिरिचुअल, यू आर स्टिल मोस्ट ब्यूटिफुल. समझ रहे हैं? दैट इज कृष्णा. दैट मीन्स हिज फॉर्म इज नॉट ऑर्डिनरी. कोई भी अपियरेंस लेंगे, चाहे वो नरसिम्हा के रूप में आए, चाहे वो शुकर रूप में आए, ही इज ऑलवेज मोस्ट ब्यूटिफुल. दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट. देयर इज नो रिलेटिविटी. अच्छा, भगवान का ना वो वाला फॉर्म इतना नहीं है सुंदर, ये वाला है. हाँ, वो भक्त का भाव होता है. भक्त का भाव है कि उसको पर्सनली श्याम सुंदर फॉर्म बहुत अच्छा लगता है ना. वो सौम्य है वो बहुत ही. नरसिम्हा भगवान अगर आ जाएंगे सामने तो डर जाएगा आदमी, है ना. तो थोड़ा सा भगवान थोड़ा जैसे अर्जुन को जब कृष्णा ने विश्व रूप दिखाया, तो अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करके विश्व रूप जब दिखाया, तो he got very scared, was frightened, he was like, भगवान आप प्लीज अब आप अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाइए, मैं इसको नहीं देख पा रहा हूँ अभी, तो बहुत भयावह है, डरावना है ना. सो कृष्णा is always most beautiful. He remembers everything of his many past births, whereas a common man cannot remember what he has done even a few hours before. है ना. सुबह क्या खाया था, शायद सोचना पड़ जाए हमको. यस और नो, है कि नहीं? हाँ. तो भगवान को सब याद है, एवरीथिंग, पूरा मेन्यू याद है उनको. और सोचिए भगवान कहाँ कहाँ कितना सारा खाते हैं, है कि नहीं. अकेले जगन्नाथपुरी में ही 56 बार इतनी सारी ऑफरिंग होती है, प्लस इतने सारे मंदिर हैं वहाँ भगवान को ऑफरिंग्स हो रही हैं. इतने सारे भक्त हैं, वो अपने इंडिविजुअल घरों में या अपने जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे ऑफरिंग करते हैं. यस और नो? भगवान को सब पता है, सब याद है. अगर कभी आपकी मुलाकात हो जाए तो अगर पूछेंगे ना कि हमने आज से 5 साल 3 महीने 4 दिन और 26 घंटे, सॉरी 26 तो होते ही नहीं, 13 घंटे पहले क्या आपको भोग लगाया था, भगवान बता देंगे एग्जैक्टली. इमेजिन कीजिए, है ना. अच्छे जो हमारे सिस्टम्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, सुपर कंप्यूटर, वो भी फेल हो जाएगा, इतने अच्छे से भगवान सब कुछ. और ये सब उन्हें किस किस के बारे में पता है? सब के बारे में पता है, सब सारे लिविंग एंटिटीज के बारे में. दैट इज द कैपेसिटी, दैट इज द पावर ऑफ कृष्णा. He would surely have to dredge his memory to recall what he was doing exactly at the same time one day before. थोड़ा सोचिए जरा, 5:50 पे शाम को कल आप क्या कर रहे थे? 1 मिनट में आंख बंद करके सोचिए, प्रयास कीजिए. किसको याद आ गया? कॉफी पी रहे थे, चाय पी रहे थे, ठीक है. चाय कॉफी के अलावा कुछ? अच्छा, जिनका जैसे लॉन्ग स्ट्रेच वाला फॉर एग्जाम्पल पढ़ाई कर रहे थे, तो वो तो 2 बजे से लेकर 8 बजे तक पढ़ाई कर रहे थे, तो ठीक है, वो तो ऑफिस में थे तो दैट इज़ ओके. बट मान लीजिए क्या बात हो रही थी उस समय, है ना. वो किसी का मैसेज आया तो क्या रिप्लाई किया, इमीडिएटली टू रिकलेक्ट, इट इज ट्रिकी. ओके, किसी को याद भी रह सकता है, आई मीन नो वे टू से कि सब लोग ही एकदम. बट व्हाट वी आर, द पॉइंट दैट वी आर मेकिंग हियर इज दैट कृष्णा's कैपेसिटी इज इनफाइनाइट.
एंड एज कंपेयर्ड हमारी कैपेसिटी कितनी सी है? इनफिनिटेसिमल, है ना? When we understand this, when we think of this, then natural gratitude, natural awe and reverence for Krishna, it comes about. Yes or no? Yes or no? वैसे कई बार आपने सुना होगा ना एक स्लोगन, गॉड इज ग्रेट. सुना? किस किसने सुना है? गॉड इज ग्रेट. But the point is, unless we know how great he is, Srila Prabhupada would say, how great he is, maybe that much respect, that much devotion, that much love for him wouldn't come. Yes or no? Once we know little bit, of course, पूरी तरह जान लेना तो impossible, लेकिन थोड़ा बहुत भी जब जानने का हम प्रयास करते हैं तब डेवलप होने लगता है उनके प्रति डिवोशन, उनके प्रति. जैसे कई बार लोग बोलते हैं ना, मैं फलाने व्यक्ति का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, है ना? इट कुड बी अ सेलिब्रिटी, अ फिल्म स्टार और स्पोर्ट्स पर्सन. समटाइम्स पीपल से ही सच एंड सच पर्सन इज माय रोल मॉडल. ऐसा ना बोलते हैं ना, मेरे आइडल हैं वो, आदर्श हैं मेरे. इट कुड बी अ बिग बिजनेसमैन, सम एंटरप्रेन्योर, समबडी, राइट? हो सकता है वो उस व्यक्ति से मिला ही ना हो आज तक, होता है ना? यस और नो? हमारे कोई फेवरेट एक्टर हो सकता है, स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है, विराट कोहली. अभी कितने लोग मिले होंगे? जितने लोग उसके फ़ैन हैं उनमें से कितने लोग एक्चुअली उससे मिल के बातचीत कर रहे होंगे, उसके साथ चाय कॉफ़ी पी होगी? नहीं पी होगी ना. फिर भी उसके बड़े फ़ैन है. क्यों? वाई दे बिकेम हिज और एनीबडीज फैन? वॉट मेड देम सच अ बिग फैन? यस, attracting. Yeah, so how does he come to this fan, the fan, how does he come to know about his opulences, about his so-called glories? He liked his games. He liked his game. He liked his game. How did he like his game? How did he get to see the game? By watching, Yes, by watching him play, by hearing maybe in the newspaper or elsewhere. Yes or no? वो फिल्म स्टार की किसी की फिल्म देख ली, है ना, उससे बड़ा अच्छा लग गया, अरे क्या भाव, कितना अच्छा है, तो उसके फैन बन गए. यस और नो? सो व्हेन वी हियर अबाउट अ पर्सन, अबाउट हिज एक्स्ट्रॉर्डिनरी फीट्स, अबाउट हिज सो कॉल्ड ग्रेट डीड्स, यस और नो, है ना, रतन टाटा साहब, अरे कितने महान व्यक्ति थे, ऐसा ऐसा उन्होंने किया, इतना चैरिटी किया देश के लिए, इतना. हमें कुछ नहीं पता था जब ये सब हो रहा था, राइट? बट हमें जैसे ही हमने सुना, पढ़ा, ओ इमीडिएटली दैट रिस्पेक्ट दिस थिंग, मुझे भी ऐसा बनना है. यस और नो? Pardon? Yes, hits, है ना? So similarly, the same process is applicable. We can understand that if we hear about Krishna more and more from the right source, then natural outcome will be that we will develop attraction towards Krishna. We will develop devotion towards Krishna. Another natural outcome would be our attraction for the so-called material things and all these things that are disturbing us, that will reduce, diminish, and thereby we will move or tread the path to attain ultimate happiness. And at the end we will go back to Krishna. Isn't it very simple? Yes or no? Isn't it very simple to go back to Krishna? संकोच किसी को? Srila Prabhupada would say, what is the difficulty? Srila Prabhupada would say, Krishna consciousness is very simple. But one has to practice it seriously. समझ में आ गया? समझ में आ गया रहस्य? It is very simple. What do you have to do? You don't have to leave aside everything and go to Himalayas, right? You don't have to fast for almost alternate days. Just eat one. Nothing, no restriction per se like that. Yes, things are there, certain things, but they are also very easy. What are you cooking? First offer to Krishna. Chant Hare Krishna Mahamantra. Hear Krishna Katha. Read Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. Offer something to Krishna. Offer Arati to Krishna. Offer Bhog to Krishna. है ना? Tell others about Krishna. थोड़ा सा बता दीजिए भगवद गीता, थोड़ा बता दीजिए हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बता दीजिए, and that's it.
वॉट मोर इज एक्सपेक्टेड, वॉट इज द डिफिकल्टी, है ना? खाना किस किस को अच्छा लगता है? खाना, अरे बाकी लोग तो लगता है सब परमहंस हो गए, किसी को खाना अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ हाथ नहीं उठा रहा कोई नहीं, अब हम डिटैच हो चुके हैं सबको लगता है, कोई बोले ना बोले, है ना? जो हाँ कई बार कोई लोग जो खा नहीं सकते वो बेचारे ऐसे ही मन ही मन आनंद लेते रहते हैं देख कर, लेकिन मन तो करता है, ऐसा नो फेवरेट डिश हो जाए कोई, उसको ही भक्ति बना दिया जा सकता है। कैसे? हाँ, बनाइए जो आपका फेवरेट, जो सबको अच्छा लगे, जो बहुत ही अद्भुत पैलेटेबल डिशेज हैं, बनाइए, भगवान को ऑफर कीजिए और उसको पाइए अच्छे से। व्हाट इज द डिफिकल्टी? व्हाट इज द डिफिकल्टी? इज देयर एनी डिफिकल्टी? आवाज नहीं आ रही। हाउ मेनी ऑफ यू फील डिफिकल्ट? बहुत डिफिकल्ट है भाई, कैसे खाएंगे? किसको लग रहा है डिफिकल्ट? अपनी फेवरेट चीज को कैसे खा सकता हूं मैं? ऐसा कौन कौन लग रहा है? किस किस को नहीं लग रहा? किसी को? तो यही तो करना है, बट उससे पहले एक स्टेप क्या करना है? क्या करना है? भगवान को भोग लगाना है उसको। कर सकते हैं? ये बहुत डिफिकल्ट है। किसको लग रहा है बहुत बहुत तकलीफ है भाई, कैसे कर सकते हैं? कर पाएंगे? मतलब डिफिकल्ट है क्या? डिफिकल्ट तो नहीं है, डिफिकल्ट तो नहीं है। जप करना क्या डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट है? अरे भैया कितना मुश्किल है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। देखिए हमने कहा ही नहीं, आपने कर दिया, तो फिर डिफिकल्ट कैसे हो सकता है? ये तो मोस्ट आसान है। कृष्णा सेज सुसुखम कर्तुम अव्ययम, जॉयफुली परफॉर्म्ड। देयर इज ओनली जॉय इन भक्ति, राइट? यस और नो? एंड येट मैन ऑफन डेयर क्लेम टू बी गॉड और कृष्णा, मतलब व्यक्ति को कुछ पिछले दिन का तो याद नहीं है, और कई बार लोग क्या बोलते हैं, मैं कृष्णा का अवतार हूं। कौन से? हाँ वो कल की। So this is the audacity, you see. Prakriti means nature as well as swaroop or one's form. प्रकृति सुना है सबने? नेचर। कई बार हम बोलते हैं ना कि अरे ये व्यक्ति का नेचर बड़ा अच्छा है, इसका नेचर अच्छा नहीं है, ये सुनो। फिर हम बोलते हैं ये जो अपने सराउंडिंग हम देखते हैं चीज़ें, है ना, प्रकृति, नेचर, पेड़ पौधे, फ्लोरा फौना, एवरीथिंग दैट इज नेचर, सन, रेनिंग, एवरीथिंग। तो सोचने वाली बात है, ये किसका नेचर है, किसकी नेचर है, किसकी प्रकृति है ये? तो असल में भगवान की प्रकृति है, और भगवान की अध्यक्षता में, सुपरविजन में ये फंक्शन करती है। कृष्णा सेज इन भगवत गीता, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चर आचरम। कृष्णा सेज दैट। सो नथिंग इज वर्किंग बाय चांस, अपने आप से रैंडमली चीजें चल रही हैं, नहीं। इट इज स्ट्रिक्टली functioning under the supervision of Krishna. The Lord says that He appears in His own body, Sambhavami Atmamayaya. He does not change His body as the common living entity changes from one body to another. In the material world, the living entity has no fixed body but transmigrates from one body to another. Krishna appears in this material world in His original eternal form with two hands holding a flute. That is His original form, Shyam Sundar form. What is the meaning of Krishna, by the way? So somebody asked Srila Prabhupada that, why do you say that God's name is Krishna? Is it only Krishna? God's name, how come? So then Prabhupada replied that actually God has no name. At the same time, God has unlimited names. But the most appropriate name, suitable name for God is Krishna. Because if He is God, that means He is a supreme person, then He must be all attractive. Yes or no? हर कोई व्यक्ति उनसे आकर्षित हो जाए, हर एरिया में, हर चीज में He is excellent, He is the supreme, all attractive, He attracts everybody. वो स्टोरी सुनिए सबने, एक चोर की सुनिए क्या? एक चोर ने कैसे भगवान को प्राप्त किया, भगवान की कैसे भक्ति प्राप्त की। चोर, सोचिए। तो एक बार क्या हुआ, एक बार एक चोर जो था वो चोरी करके कहीं से भागा
और लोग पीछे भागे तो बेचारा भागता भागता अपनी जान बचाते हुए एक जगह घुसा और वहाँ एक भागवत का प्रवचन चल रहा था, मान लीजिए ऐसा ही कुछ। यहाँ पर तो नहीं है कोई? बताएगा क्यों? वो तो ऐसे बैठ गया वो चुपचाप जगह देख के, और जो स्वामी जी थे वो प्रवचन दे रहे थे, एंड ही वॉज देन टेलिंग दैट he was describing the beauty of Krishna, little Krishna, that Krishna is so beautiful. He wanders in the forest of Vrindavan, tending his cows, playing with his cowherd friends. He wears a peacock feather, Vanmala, uh, the garland made of forest flowers, Kadamba flowers. Then he is decorated with chandan, with colorful chandan. And he wears golden ornaments, bracelets, necklace, waistband. So ये सुनते सुनते अब उसका ध्यान गया. पहले तो was not paying attention, but then immediately then he thought, अरे ये छोटा सा बच्चा इतना सारा गोल्डन ज्वेलरी पहन के घूमता है, अगर ये मेरे हाथ लग गया, एंड इफ आई कुड टेक अवे हिज ज्वेलरी, ऑल दैट गोल्ड, मेरी तो लाइफ बन जाएगी, फिर तो आई डोंट हैव टू स्टील एनी मोर, राइट? सही बात है ना? देन ही थॉट, आई मस्ट कैच दिस बॉय कृष्णा. सो ही हर्ड, वृंदावन में रहता है, एंड वृंदावन इट सीम्स वाज नॉट सो फार फ्रॉम हिज प्लेस, फ्रॉम दिस प्लेस. सो ही स्टार्टेड फॉर वृंदावन. वृंदावन में पहुंच गया, लोगों से पूछ रहे हैं, हाँ कृष्णा को देखा, कृष्णा कहाँ मिलता है? अच्छा, अब वृंदावन में तो क्या सब लोग दो चीज़ें, एक तो कई बच्चों के भी नाम होते हैं कृष्णा, है ना, और कई ऐसे साधु महात्मा जो आते हैं वो लिटरली पूछते हैं कई बार रियल कृष्णा के बारे में, कृष्णा को देखा क्या, है ना? होता ना, कुछ लोग संत होते हैं जो बिल्कुल ही तो सब लोग समझ गए कि यार ये तो लगता है कोई संत हैं जो पूछ रहे हैं कृष्णा के बारे में. तो कोई बता रहा है, हाँ आप इधर चले जाइए, इस यहाँ पर गोविंद जी का मंदिर है, यहाँ दर्शन कर लीजिए. तो वो दर्शन कर आया, तो नहीं ये तो नहीं, ये तो यहाँ मंदिर में है, बाकी कृष्णा कहाँ मिलेगा? सबसे पूछते रहे. तो फिर याद आया कि हाँ वो स्वामी जी बता रहे थे कि जंगल में घूमता रहता है वो, तो खेलता हुआ कूदता हुआ, बोलता हूँ वहीं जाता हूँ मैं, और क्या जंगल में ही अच्छा रहेगा, उससे मैं अपनी चीज़ें ले लूँगा उसकी, क्योंकि अगर पब्लिक प्लेस में मिलूँगा तो हो नहीं पाएगा ये काम. तो वो जंगल में जाता है और आवाज़ लगा रहा, कृष्णा कृष्णा, जोर से. He was so eager to see Krishna, so desperate, so much eager that I must see this boy and I must take away his jewelry. He was so very eager that actually Krishna came in front of him in the same form that he heard from this, in this Bhagavad Pravachan. Same form, decorated, beautiful, most beautiful. तो उनको देखते ही, first of all, this thief, he got so attracted. Wow, so beautiful. I've never seen such a beautiful child. And he started speaking to him sweetly, in sweet words. Sat with him, started talking. And Krishna was also talking. And then, of course, he recollected, no, I don't have to be focused. I have to steal this. So then he was talking, and slowly and gradually, कि बातचीत चल रही है. कृष्णा से पूछ रहे हैं, अच्छा तुम कहाँ रहते हो? वो बता रहे हैं, सब कुछ चल रहा है. अच्छा ये जो तुमने, अच्छा इतने में भगवान क्या उनको स्पर्श कर देते हैं, है ना? तो फिर वो पूछता है, अच्छा ये जो तुम्हारे ऑर्नामेंट्स हैं ना, ये दिखाओ मुझे ज़रा, कैसा है आपका ये बैंगल, दिखाओ, ये दिखाओ. तो कृष्णा कहते, नहीं मैं नहीं दे सकता. अगर ये आपको दे दिया तो मैया मारेगी, मैया डांटेगी बहुत ज़्यादा. आई कैन नॉट गिव. नहीं प्लीज एक बार दिखाओ तो सही, आई जस्ट वांट टू सी इट, आई विल गिव यू बैक. नहीं मैं नहीं दूंगा. वो पूरा चल रहा है, ठीक है. एंड इस सारे इंटरेक्शन में दिस पर्सन हु केम विद एन इंटेंशन टू स्टील Krishna's jewelry, he became purified. His heart became purified. He actually, there was no more any desire to steal or get that thing or whatever.
He was so much absorbed in Krishna's beauty, his words. He forgot everything. And finally he became devotee. And then Krishna said, okay, you are asking so much. I'll give you. उतार के take the नहीं मुझे नहीं चाहिए है ना? Then of course he never took it and he became a pure devotee immediately. Krishna purified him fully of his desires. That is why in our Shastra it is said that a person, he may have any desire or he may have no desire, no material desire I mean, or he may have desire to get mukti or liberation. Akama sarva kamo va moksha kama udaradhi tivrena bhakti yogena yajeta purusham param. If he engages in bhakti yoga, of whom? Purusham param Krishna, then he is purified. Of course, if he has no desire, he simply wants to serve Krishna, then he attains this perfection. If he has all the material desires, those desires get purified. And if he has the desire to get liberation, that also he attains. So in any condition, we should come to Krishna, go to Krishna, surrender to him and pray to him and serve him. He appears exactly in his eternal body, uncontaminated by this material world. Although he appears in the same transcendental body and is Lord of the universe, it still appears that he takes his birth like an ordinary living entity. It appears, but actually his birth is not like an ordinary living entity. He appears in his self-same spiritual form. In fact, it is said that Krishna first appeared in the heart or mind of Vasudeva. And from the mind of Vasudeva, he was transferred to the mind of Devaki. That was not the regular kind of that impregnation that happens biological. No. So we should not mistake Krishna's birth to be an ordinary birth. Vasudev matlab Vasudev platform. It's also called, that's a level. Vasudev means pure goodness, Shuddha Sattva. And unless and until one attains that platform of Shuddha Sattva, Krishna in his full feature does not appear. Of course, Krishna is so merciful that he even gives association to the devotees who are very neophytes, beginners, not so pure. That is his mercy. But when Krishna establishes in one's heart fully and completely, that means that heart has to be fully pure, Shuddha Sattva. And that is called Vasudev platform. Just like Vasudev ke heart mein, Vasudev ke mind mein Krishna appeared, similarly we also have to attain that stage of Vasudev. Then Krishna is established completely. Then a person is always 24/7, 100% Krishna conscious. Despite the fact Lord Krishna grows from childhood to boyhood and from boyhood to youth, astonishingly enough, he never ages beyond youth. कभी कहीं पे कृष्णा की मे बी किसी जगह पे या फोटो या पिक्चर देखा है, थोड़े से बुजुर्ग लग रहे हैं उसमें कृष्णा. When this महाभारत का युद्ध happened, any guesses कृष्णा की एज क्या होगी? कृष्णा की एज 87? 100? Pardon? 25 to 30. तो सर बता रहे हैं कि जैसे वो दिखते थे. हम पूछ रहे हैं ओरिजिनल एज क्या थी? 125 years. 125 years. He had children, grandchildren, great-grandchildren. But he appeared like a youthful boy, young man, young boy. Srila Prabhupada, around same, 25 years. Because beyond that he didn't age. Why? If there's any material body, it has to age, right? Material laws को तो follow करेगी ना वो body अगर material होगी तो. It has to age. So funny. I remember when I was in college long back, many years ago. So one time we were sitting in the library, and I don't know from where there was some magazine. कहाँ से वो क्या आ गई?
I don't think it was magazine, some kind of a paper, some newspaper kind of a thing. Anyway, something, it was some published material. तो उस पे लिखा हुआ है कि कल की भगवान अवतार ले चुके हैं, वो है ना, लीला कर रहे हैं अपनी ऐसे. और आई मीन इट वाज सो फनी कि किसी ने फोटोशॉप यूज़ करके एक व्यक्ति को घोड़े पे बिठा दिया. ठीक है, घोड़ों का एक इमेज लिया, उस व्यक्ति का इमेज लिया, उसके हाथ में तलवार पकड़ा दी और ढाल पकड़ा दी. नाउ दिस फेलो वाज, मतलब रियल में अगर उन्हें घोड़े पे बिठा दें तो वो पता नहीं बैठ भी पाएंगे कि नहीं. ही वॉज सो मच एजड, यू नो, ऑलमोस्ट इनवैलिड, अपीयर्ड इन द फोटो. तो एक घोड़े वाली फोटो थी जो फोटोशॉप थी, और एक अलग से उनकी फोटो थी जिसमें बैठे हुए हैं. ठीक है, एक्सट्रीमली ओल्ड. एंड दिस वन, एंड इसमें लिखा है कल की अवतार है ये. तो देन इमीडिएटली इफ समवन रिलेट्स विद दिस, है कृष्णा एवर फ्रेश, यूथफुल, नव यौवनम, हाउ इज इट दैट ही हैज एज्ड सो मच कल के अवतार में, और फिर वो बैठे हैं, है ना. He is the oldest person in the whole creation, past, present and future. Neither his body nor his intelligence ever deteriorates or changes factually. His appearance and disappearance are like the sun's rising, moving before us and then disappearing from our eyesight. This is a phenomena that we all have witnessed. Yes or no? कोई ऐसा बोलता है कि अरे सन क्रिएट हो गया आज, कभी सुना है? क्या बोलते हैं? सन राइज हो गया, है ना, सेट हो गया. यस और नो? यस और नो? राइज मतलब अपीयर हो गया, अभी हमें दिख रहा है. सेट मतलब डिसअपीयर हो गया, राइट, अभी नहीं दिख रहा. बट सन के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ा क्या? एग्जिस्टेंस तो इंटैक्ट है ना. यस और नो? कृष्णा इज ऑलवेज देयर प्रेजेंट. He appears and disappears. That is why he says, Janma karma cha me divyam. My appearance, my janma, and my activities, my karma, they are divyam, transcendental, divine. They are not ordinary like us, like ours. Actually, the sun is always in its fixed position. But owing to our defective, insufficient senses, we calculate the appearance and disappearance of the sun in the sky. In the Bhagavatam, he appears before his mother as Narayan with 4 hands and the decorations of the 6 kinds of full opulences. तो जब देवकी मैया और वसुदेव के यहाँ पे जब वो अपीयर हुए भगवान कारागृह में, तो कैसे अपीयर हुए पता है? छोटा सा ही फॉर्म है लेकिन 400 फॉर्म में अपीयर हुए कृष्णा. 400 form may appear and with all the 6 kinds of decorations. That is how Krishna appeared. And then now you see Devaki Maya, because there's so much of influence of Yog Maya, Krishna's internal energy, that it makes even the devotees, even people forget what is the right position of Krishna. Otherwise the Leela will not be able to perform, right? समझ रहे ना. तो देवकी मैया क्या सोच रही हैं, क्या बोल रही हैं उनको? भगवान अब आप ये वाला फॉर्म हटा लीजिए, रेगुलर ना 200 फॉर्म में आ जाइए एक नॉर्मल बच्चे की तरह, क्योंकि अगर कंस आ गया तो वो आपको देख के आपको भी मार देगा, जैसे मेरे पहले उसने इतनी संतानों का वध कर दिया. आई मीन जस्ट इमेजिन व्हेन शी नोज दैट ही इज द सुप्रीम लॉर्ड, कैन कंस और कैन द फादर ऑफ कंस, और फादर वाज ओके वेरी नाइस पर्सन, बट समबडी एल्स किल कृष्णा, kill the Narayan form of the Lord? But she, out of that motherly affection, expressing her concern, her fear, कैसे इनको छुपा लें, कैसे conceal करने इनकी real identity? Because this Kans has been waiting for the Lord to appear so that he can kill him. That's why he has been killing all my sons. है ना? Devaki Maiya was thinking. The Lord is conscious of all of his previous appearances and disappearances. But a common living entity forgets everything about his past body as soon as he gets another body. This is our condition. He is the Lord of all living entities because he performs wonderful and superhuman activities while he is on this earth. Therefore, the Lord is always the same absolute truth and is without differentiation between his form and self or between his quality and body. So this is something very, very important to note.
that there is gulf of difference of day and night between Krishna's form, Krishna's appearance, and ours. Right? So, to equate them, to consider Krishna as also any ordinary or extraordinary person is actually not a fact, because Krishna is not even extraordinary. Krishna is सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड. सुप्रीम पर्सनैलिटी. जैसे पता ना आपको, एक डिपार्टमेंट अगर कोई होता है तो उसका क्या होता है? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. यस और नो? HOD, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. सो दे कैन बी मैनी गॉड्स. गॉड मतलब कंट्रोलर, है ना? देवताओं को भी कई बार गॉड बोल दिया जाता है. यस और नो? कई बार लोग गॉड जब बोलते हैं, दे बी रेफरिंग टू डिफरेंट देवताज who are the controllers of certain affairs of the universe. इंद्रदेव वर्षा के देवता हैं वो, वरुण देव जल के, वायुदेव वायु के, सूर्यदेव सूरज के, लाइक दैट, है ना? इतने सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं यूनिवर्स के, उन सब के जो इंचार्ज हैं, कंट्रोलर्स हैं, दे आर कॉल्ड डिफरेंट देवतास. सो दे कैन ऑल्सो समटाइम्स बी कॉल्ड गॉड, बट सारे गॉड्स के हेड. एंड देन इट इज सेड, is he some impersonal energy or some power only? No, he is a personality, he is a person, and he is a supreme person. Somebody will say, I'm also a person, and I know that person also, and I know he is the emperor of this nation or country, such a great person. So yes, we may have seen so many great persons also, but he is supreme personality of Godhead. So that is the position of Krishna. So we'll continue in the next session. Subscribe to our channel, and to get the latest updates, do not forget to press the bell icon. Hare Krishna.